आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर एसएसटी के नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ उसकी जानकारियाँ लेने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। Concerned social scientists are clear on what we need to do. We must move toward a generative economy, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycler of all resources. Christiana Figueras and Tom Rivett, Carnick in the future we choose. Figure 1.1, Dudhsagar waterfall and the railway bridge Goa in India. The big question. First, how do we categorize natural resources? Second, what is the connections between the distribution of natural resources and different aspects of life? Third, what are the implications of unsustainable use of over exploitations of natural resources? So children, फर्स्ट चैप्टर का जो उद्देश्य है बच्चों को बताना वो है प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग। अर्थात चिंतित वैज्ञानिक जो सामाजिक वैज्ञानिक है इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक पुनर्योजन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में कार्य करे, उपयोग किए गए संसाधनों का पुनः उपयोग करे, अवशिष्ट को कम करे और समाप्त हो चुके संसाधनों को भरपाई करे। हमें स्वयं प्रकृति के अंतर्निहित बुद्धिमत्ता की ओर लौटना होगा जो सभी संसाधनों की सर्वोच्च पुनरुत्थान और पुनर्चक्र करता है। क्रिस्टियाना फिगुरस और टॉम रिवेट कार्नेक ने द फ्यूचर वी यूज में ये बात समझाने की कोशिश की है। तस्वीर 1.1 में दूधसागर जलप्रपात और रेलवे पुल गोवा जो भारत में है उसे दिखाने की कोशिश की गई है या दर्शाना चाहा है। इसके साथ कुछ बड़े बड़े प्रश्न भी उभरते हैं। हम भारतीय संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच में क्या संबंध है? और तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के अस्थिर उपयोग या अत्यधिक दोहन के क्या प्रभाव हैं? First topic, when does nature become a resource? One of the meaning of the word nature is the totality of life and non-life form that are part of our environment but have not been created by humans. When humans use this for their sustenance or create new things from them for consumptions, these elements of nature become resources. For examples, trees are part of environment. They exist independently of humans. When we cut them and convert their wood into furniture, we see the trees as a resource. Often, these entities are not easily accessible. For example, there may be petroleum in places deep under the ocean that we do not have a technology to access. Or the extraction cost may be too high, or it may be culturally unacceptable, like cutting trees is sacred groups. So for an entity to be called a resource, it should be technologically accessible, and its exploitations should be uneconomically feasible and culturally unacceptable. Usually, the word exploitations has a negative connotations in this context. We use it here. It means extractions, utilizations, and consumptions of nature resources. The earth has treasures, many of which have formed over millions of years and which humans have taken and learned to use. This include the most obvious ones like water, air, and soil, and also the not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metal ores, timbers, etc. तो बच्चों, जो पहला विषय है वह है
प्रकृति शब्द के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन कब बनती है। प्रकृति शब्द एक ऐसा अर्थ लेके आता है जिसमें हमारे पर्यावरण का संपूर्ण भाग, जिसमें जीवित और निर्जीवित यानी जो जीवंत है और जिसमें प्राण नहीं है, ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं और जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है। जब हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने उपयोग के लिए नई नई चीज़ें बनाते हैं, नई नई वस्तुएं बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तब वह प्रकृति एक तत्व संसाधन बन जाती है। उदाहरण के लिए पेड़ पर्यावरण का एक हिस्सा है। वे मनुष्य से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। जब हम उन्हें काटकर अपनी लकड़ी को लेके फर्नीचर बनाते हैं, तब हम पेड़ों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं। अक्सर ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराइयों में पेट्रोलियम को ले सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास वहां तक पहुंचने की तकनीक ना हो और उसे निकालने की लागत बहुत अधिक हो, या फिर संसाधन सांसारिक रूप से सांस्कृतिक रूप से पवित्र उपवनों को, पेड़ को काटना स्वीकार ना किया जा रहा हो, तब क्या? इसलिए किसी वस्तु को संसाधन कहने के लिए या कहलाने के लिए तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए और उसका उपयोग आर्थिक रूप से संभव तथा सांस्कृतिक रूप से स्वीकारणीय हो या लोग उसे स्वीकार करते हों। सामान्यतः शोषण शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग है। प्रकृति में अनेक खजाने हैं जिनमें कई लाखों वर्षों से बने और जिसमें मनुष्य ने खोज कर उपयोग भी करना सीखा। इसमें पानी, वायु, मिट्टी जैसे सामान्यतः संसाधन शामिल हैं। साथ ही कोयला, पेट्रोलियम, बहुमूल्य पदार्थ, धातु अयस्क, लकड़ी आदि जैसे कम स्पष्ट संसाधन भी शामिल होते हैं। फिगर 1.1, a micro hydel plant in Himachal Pradesh. The power of flowing water converted into electricity. Figure 1.3, an offshore oil rig extracted petroleum from below the seabed. तस्वीर 1.2 में हिमाचल प्रदेश में एक सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र है जो बहते हुए पानी की शक्ति को बिजली में परिवर्तित करता है। फिगर 1.4, gentle ploughing causes minimal distribution to the underground ecosystem and retains soil moisture. And in figure 1.5, honey from beehive. तस्वीर 1.4 हल्की जुताई वाली भूमिगत परिस्थिति तंत्र को कम से कम प्रभावित करती और मिट्टी की नमी बनाए रखती है, इसको दर्शा रहा है। वहीं साथ ही साथ 1.5 में मधुमक्खी के छत्ते से किस प्रकार शहद को निकाला जाता है, यह दर्शाया जा रहा है। फिगर 1.6, तुलसी पूजा फॉर वेलबींग, अर्थात तस्वीर 1.6 में तुलसी की पूजा का किया जाना, और ये क्यों किया जाता है? ताकि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया हो, सभी तरफ समृद्धि को करने का या दिखाने का एक जरिया है। Don't miss out. In many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred. You have read about this. In such traditions, nature is nurture and nourishers. Do you know the practices that reflect this? तो हमने चैप्टर को पढ़ा और कुछ बात जो हमें याद रखनी चाहिए या जिसे हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो पहली तो है कि दुनिया की अनेक स्वदेशी परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है, और जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, ऐसी परंपराओं में प्रकृति को पालन पोषण करने वाली और पोषक माना जाता है। दूसरी बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो यह है कि क्या आप ऐसी प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो इसे दर्शाती हो। इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।